Most of you would have heard about Human Development Index or the Democracy Index. Similarly, there is an index or indicator which is called competitiveness ranking. And the latest data that I have got is for 2019. India slipped 10 places in this particular, against this particular indicator. It is called Global Competitiveness Index. Let's call it GCI. Global Competitiveness. What is competitiveness means? How competitive a country is, right? And this particular index is maintained, and assessment is carried against GCI by World Economic Forum. World Economic Forum. GCI, that is Global Competitiveness Index, is measured for 141 countries using 12 parameters, right? India's rank in 2018 was 58. Today, the latest available 2019, India's rank is 68. It means within 1 year, India has lost 10 ranks. GCI India's rank against GCI, there are 12 parameters against which the GCI assessment is carried out. Number one, institutions. What is the strength of the institutions? India's score in the latest score for 2019 is 59, better than its overall score. You know, every country is ranked against these 12 parameters, and then the average of 12 is taken as the overall rank. India's rank against institutions is 59. Institutions which support development, etc. Infrastructure, India's rank is 70. ICT adoption, whereas India's overall rank is 68. Against ICT, it is 120. Macro stability, 43. Health, 110, very bad. 107, very bad. Product marketing, okay, product market, 101, bad. Labor market, 103, bad. Financial system, 40, good. Market size, 3, very good. 3 is a very good rank. You know, we are a big market, so naturally, our rank is 3. Hello? Hello? Am I being heard? Yes, sir. Okay, good. So will anyone tell me what was the question that I asked? Right. What is the size of India's economy? I mean, or rather, where do we stand? Where does India stand in terms of the size of its economy, GDP? Whether it is 3rd, 4th, 5th, 6th. Let anyone answer. In terms of the size of the GDP, what is India's rank? 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th? Sir, 5th. 5th in terms of, there are 2 types of measures of GDP. One is nominal. 5th is nominal. The other is purchasing power parity, PPP.
what is the rank of India's GDP in terms of PPP, purchasing power parity? Second, sir. Third. Yes. Sir, third. Third. I agree with third. So naturally, I think here India's rank is, market size is 3. So probably they have taken into account PPP. Right. Next is business dynamism. Our rank is 69. It is slightly lower than our overall rank. Innovation capability, 35. This is really good. This is really good. Now, which are the top 5 countries in respect of the GCI? The top 5 countries are USA, Hong Kong, Netherlands, and Switzerland. You will see that against most of the development indicators, the top positions are occupied by some of the Scandinavian countries, those located in North Europe, Switzerland. Which else are the Scandinavian countries? Sweden, Norway. Any other country? Finland, Scandinavian countries. Some of the Scandinavian countries, USA, and also I'm hearing some voices. I'm not sure if I'm supposed to hear those voices. Okay, let's move to the next one. Not the next topic, next point within the same subject. Except for Brazil, all the BRIC countries have fared better than India in terms of the GCI. Now, why are we concerned about India's rank in GCI? What is the importance of GCI? GCI is important because it is based on 12 indicators. Many of these sub-indicators or parameters, many of these 12 parameters actually reflect productivity and potential for long-term economic growth. So if India's performance against these 12 parameters is poor or weak, it means our productivity and potential for long-term economic growth is weak or poor. That is the reason why GCI is important. मैं फिर से एक बार बताता हूँ, GCI यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GCI का जो असेसमेंट होता है वो 12 पैरामीटर्स के अगेंस्ट होता है, और वो 12 पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स हैं, ऐसे सब इंडिकेटर्स हैं कि जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि किसी कंट्री में प्रोडक्टिविटी कैसी है और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है। और आप जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी के बारे में कोई बताएगा प्रोडक्टिविटी क्या होती है? मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट कभी नहीं रहा, कभी मैंने पढ़ी नहीं किताब में, मगर मोटा मोटी समझता हूँ। आप में से कोई बताएगा प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं है आप में? जी, मुझे तो कुछ नॉइज सुनाई पड़ रही है, कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ी। क्या मैं बताऊं? आप हाँ बोल दिए तो मुझे लगेगा कि आपने मेरा सवाल सुन लिया। Should I try and answer my question on productivity? Yes, sir. Okay. Productivity means, broadly, forget about economics. Productivity basically means how productive you are. Suppose a factory is producing shoes. So the cost of producing one additional pair of shoe, वो प्रोडक्टिविटी होती है। कितने कम दाम में, कितने कम टाइम में एक यूनिट को आप प्रोड्यूस करें, वो प्रोडक्टिविटी होती है। अब आप प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के ले लीजिए। हमारे यहाँ 1 बीघा या 1 बीघा तो हर इंडिया के बाहर, साउथ एशिया के बाहर नहीं जाना जाता, जो जितना हम फूड ग्रेन्स पैदा करते हैं 1 एकड़ में, उसके मुकाबले में अमेरिका में, यूरोप में प्रोडक्ट में बहुत फर्क है और कितना वो पैदा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कितना पैदा करते हैं 1 एकड़ जमीन के अंदर,
तो ये प्रोडक्टिविटी होती है। आप कितने प्रोडक्टिव हैं, आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भूल जाइए, मोटा मोटी प्रोडक्टिविटी समझ लीजिए। ओके, देखिए अभी हमने देखा कि इंडिया का ओवरऑल रैंक न सिर्फ ये कि गिरा है 2018 के कंपैरिजन में 2019 में 10 प्लेसेस, बल्कि कुछ प्लेसेस में कुछ पैरामीटर्स के अगेंस्ट हमारा जो जो रैंक है वो बहुत ही खराब है। और सबसे ज्यादा जो दुखदाई है, मुश्किल बात यह है कि हमारा जो रैंक बहुत खराब है ऑप्शन। हम समझते हैं कि दुनिया के अंदर आईसीटी के अंदर हम अमंग द टॉप कंट्रीज में से हैं, स्किल्स में, लेबर मार्केट में, हेल्थ पैरामीटर्स में, इन सभी में हमारा जो रैंक है 100 से ज्यादा नीचे है। तो कुल मिला के आप समझ गए कि हमारा मुल्क जो है जिन पैरामीटर्स, जिन पिलर्स के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी रेस्ट करते हैं, against those parameters our performance has been slipping in recent years. So this is an international indicator of that slippage, GCI. आप में से कोई मुझे बताएगा कि what is the importance of GCI? Hello, can you hear me? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Please tell me what is the importance of GCI? Why GCI is important? You have got the notes, and I repeated all that is written in the notes. If still you are not able to tell me what is the importance of GCI, then I think these lectures are not serving any purpose at all. And I'm throwing open the choice to just anybody, because I'm not able to see anybody right now. Hello? Should I repeat? Hello? Hello? Hello, participants. Anybody please speak up? Are you hearing me? Yes, sir, you are audible. Am I audible? So please, why don't you tell me what is the importance of GCI? GCI क्यों अहम है हमारे लिए? आप तो घर में बैठे हैं, नोट्स आपके सामने हैं, मैंने आपको तफसील से बताया भी उसका मतलब। Sir, I joined it. जी, Sir, for the economic development of the country. Speak in full sentence. Say GCI is important because GCI is important because for the economic development of any country, and also it maintains the balance of trade between import and export. No, that's not correct. Did I say that? No, sir. No, that's not correct. First point is correct. Okay. And you should say at least two things. First, you start with saying that it reflects the productivity of the economy of a country. And Okay. number two, it reflects the potential for long-term economic growth. Okay. Productivity, potential for long-term economic growth, both are very, very important for any country, particularly for a country like India. Right? So if our rank against GCI, which reflects productivity and potential for long-term growth, is slipping, this is a very bad indicator. It is a wake-up call for the country to sit up and take note. Okay, anybody else? Who will tell me how many parameters GCI consists of? So 12 parameters. 12 parameters. Which of these 12
India's performance is worst in 2019? Hello? Did you receive my notes on this topic? Have you got my notes on this topic? Hello? Mohammad Shadab. I'm seeing only one name on my screen. मोहम्मद शादाब साहब, आपको मेरे नोट्स मिले हैं जीसीआई के बारे में? हेलो, एनीबॉडी कैन आंसर माय क्वेश्चन? No, sir, I have not got the notes. अरे, आपको इससे पहले जो टॉपिक वो डिस्कस हुआ था पिछले बार के नोट्स मिले हैं आपको? सर मुझे न्यूट्रिशन के नोट्स मिले हैं आपको? इससे पहले हमने न्यूट्रिशन डिस्कस किया था, वो उसके नोट्स मिले हैं आपको? सर I was not in that class. नहीं, आप क्लास में हो या ना हो, whether you were in that class or not, I think notes were forwarded by Mr. Sablu Khan to all the participants. Are you an exception? Anybody else? Tell me who has received the notes. हेलो सर जीसीआई के नोट्स तो नहीं मिले हैं। आपको इनोवेशन सॉरी न्यूट्रिशन के ऊपर मेरे नोट्स मिले हैं? नो सर, न्यूट्रिशन के भी नहीं मिले। सर किसी के भी फॉरवर्डेड नहीं हुए। अरे कमाल है, मैं तो सारे के सारे बहुत पहले भेज चुका हूँ सबलू खान साहब को। सर ग्रुप पे नहीं आया था। जी ग्रुप पे नहीं आया था सर। ओहो हो, ये तो बहुत अफसोस की बात है। ये मैंने इससे पहले जो टॉपिक कवर किए हैं, ये एक ही मेरे नोट में 5 टॉपिक्स कवर्ड हैं। नोबेल लॉरेट अभिजीत बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन टेलीकॉम कंपनीज, न्यूट्रिशन, और ये आज के दो टॉपिक्स। आप लोगों में से किसी को भी कुछ नहीं मिला? नो सर। अरे, not only that, I had forwarded my notes long time back, but Sablu Khan Sahab had confirmed that those notes have been shared with all of you. Anyway, I'll check with him on this. Okay, sir. Then if you don't have the notes, then please listen to me carefully. You know I'm in the habit of repeating. So even if you miss first time, don't try and miss. Don't deliberately miss. But in case you miss, you should try to catch up when I repeat second time. I repeat the whole thing again in 2 minutes, 2 or 3 minutes. You know, there are a number of development indicators against which performance of various countries is assessed from year to year. One of them is GCI, Global Competitiveness Index. Against this index, assessment of countries against this indicator is carried out by World Economic Forum. Last year's indicator, this year as far as I know, no assessment has been published so far. And last year's assessment was also published around October. So one would expect that 2020 ranking will come around October, maybe a little before. So last year ranking, India's rank was 68, which was 10 ranks lower than India's rank in 2018 against GCI. GCI के मामले में इंडिया का रैंक 2018 में 58 था, 50 + 8 58, और एक साल में यानी 2019 में हमारा रैंक स्लिप करके 68 पे आ गया। ये हमारे लिए बहुत अहम है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से अर्ज किया, क्योंकि GCI
12 पैरामीटर्स को सामने रख के उसका असेसमेंट होता है, और वो पैरामीटर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर इन 12 पैरामीटर्स के अगेंस्ट हमारे परफॉर्मेंस स्लिप कर रही है, इसके मतलब ये कि हमारा जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो अच्छा नहीं है। ये एक वेकअप कॉल है, दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर द पॉलिसी मेकर्स एंड द इम्प्लीमेंटर्स एंड द गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू सिट अप एंड टेक नोट। ये बात क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, आप में से कोई ऐसा इसका जिस्ट बताए जिसने कि अभी तक कुछ भी नहीं बोला? ये तो किसी बच्चे की आवाज आई। हेलो, मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मुझे आप लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार लैपटॉप लेकर बैठूंगा तो शायद हमारा आपका कम्युनिकेशन थोड़ा बेहतर होगा। ये बताइए आप, चलिए कोई भी बता दे, जिस्ट बता दे, जितना मैंने बताया उतना ही ब्रीफली 2 मिनट में बता दे जिस्ट। So Global Competitiveness Index is based on 12 parameters or indicators which Right. actually reflect the productivity and the potential of the long-term economic growth of a country. Very good. Carry on. Sir, in 2019, the rank of GCI slipped to 68th rank, which is a wake-up call for the policymaker. India's rank against GCI. Yes, sir. You said rank of GCI. India's rank against GCI. No, India's rank in GCI. Right. Yes, sir. Slipped how many ranks? In 2019, the rank slipped to 68th rank. Right. And this reflects a slippage of 10 ranks. Yes, sir. Earlier it was 58th rank. Right. So this is a wake-up call for the policymaker and the stakeholders or the government to take the initiative for the betterment of the position in this index. Oh, are you Amina Sayyed? Yes, sir. Well done, Amina. Thank you. Let me move Thank to you. the next topic. Next topic is India jumps 14 places on ease of doing business. I'm pretty sure if any one of you has heard about only one development indicator, that should be ease of doing business. Am I right? All of you have heard about ease of doing business? Hello? Say yes or no. Yes, sir. Right. So, and why am I saying this? I'm saying this because this is one rank against which India had set the current government, the current ruling party, the current government, starting from 2014, they came to power in 2014. This is their second term. Early on, after coming to power, they set a very challenging target of lowering India's rank from, I think it was in those days, 142nd rank in 2014. Against ease of doing business, India's rank was 142 in 2014. And government set itself a very challenging target that by 2020, in 6 years, India's rank will be reduced to 50. In 2019, India has come very close to that target of 50. We were at 63 last year, right? Which organization makes assessment of countries against ease of doing business? Who will tell me? World Bank. World Bank. Good. Why is it so popular? It's very well known, popular because government set a target, has performed very well against this target, and people who represent government, including the Prime Minister, they very fondly mention this fact in their speeches and other public statements. So that is one reason why most people hear about ease of doing business. Some other rankings, probably most of you would not know this yet. Because against one. So India's
rank was one again, moved to 77th rank in 2018 and finally to what rank in 2019? Will 63. somebody tell me? Ji? 63. Very good, very good. 63 in 2019. So that is the latest. And the target 2050 was 2020 was 50. So we are quite close to 50. And we don't know where we stand in 2020 because as far as I know, for 2020, ease of doing business ranking has not been announced. Right. And not only that, our rank is improving starting from 2015 onwards. For the past 3 consecutive years, India is among the top 10 countries which have improved most. Am I clear? For the third consecutive year, India has been among the top 10 improvers. यानी वो 10 countries जिन्होंने मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट शो किया है, उन ऐसे कंट्रीज के जो टॉप 10 हैं, उनमें इंडिया की गिनती 19 में भी है, 18 में भी थी और 17 में भी थी. 3 साल से हम चल रहे हैं. टॉप पे कौन है? न्यूजीलैंड, टॉप द चार्ट, फॉलोड बाय सिंगापुर एंड हांगकांग. चाइना's रैंक इज 31st. देखिए, हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि फिर भी हम चाइना से बहुत पीछे हैं. We are at 63 when China is at 31. That's the gap. The time taken to resolve insolvency has been reduced. You know insolvency के मामलात में को निपटाने में बहुत देर लगती थी पहले. अब नया इंसॉल्वेंसी का लॉ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है और उसके लिए मैकेनिज्म डेवलप किए हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए. अब ये टाइम काफी कम हो गया है. पहले 4 ईयर से ज्यादा लगते थे, 4.25 साल लगते थे. अब लगभग 1.5 साल में हो जाता है इंसॉल्वेंसी की केस सेटल. और ये परफॉर्मेंस इंसॉल्वेंसी के मामले में इंडिया की परफॉर्मेंस जो है कंपेरेबल विद द OECD कंट्री, सारे डेवलप कंट्री. चलिए, इंडिया ने भी, मैंने जैसा कि कहा, इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इंसॉल्वेंसी में. बैंक्रप्सी कोड बनाया 2016 का, लॉ लाए हैं. उस लॉ का नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बनाई गवर्नमेंट ने, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाई, और इन सभी की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर असर पड़ा है. और कुछ चीजों में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स, इन सब में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है. लेकिन अभी भी एक एरिया है जहां की हमारी परफॉर्मेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर्स में कम है. वो है स्टार्टिंग. ओवरऑल रैंक हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कितना है? 63वां रैंक है हमारा. लेकिन कोई अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, वहां पे हमारा रैंक है 137th रैंक. बहुत खराब, बहुत खराब. इट्स वेरी बैड. अरे भाई, जब तक आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर ये बताइए कि बिजनेस करने का माहौल कितना भी अच्छा हो गया हो, उससे आपको क्या फायदा हो पाएगा जब आप बरसों तक बैठे इंतजार ही करते रहेंगे कि हम बिजनेस स्टार्ट करने का. If you take so long to start a new business, how will you avail of the improvements made in the business climate? Clear? तो ये एक दुखदाई बात है. आइए, कुछ और भी लिमिटेशंस हैं जो हमारा अचीवमेंट है. ये 142 से 2014 में हमारा रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंक हुआ करता था 142 से हम 63 पर आ गए. बात है. लेकिन आपको पता है इस अचीवमेंट के कुछ लिमिटेशंस हैं. आप में से कोई बताएगा क्या लिमिटेशन है? It is not as great as it sounds. Why? अगर आप में से कोई बताएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी. I'll be pleased if anybody can tell me the reason. Sir, for ease of doing business, data is collected only from big cities like Delhi and Mumbai. Wonderful. I'm really pleased. क्या नाम है आपका?
बुशरा, Yes, sir. बुशरा, वेरी वेल डन, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। Thank बहुत you, अच्छा, sir. बहुत Thank you. अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग। बाकी लोग भी समझ लीजिए इसको। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में के जो पैरामीटर्स हैं उसके अगेंस्ट में इंप्रूवमेंट करने के लिए हमको कई बार तो कई नए लॉज इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं या एग्जिस्टिंग लॉज और रूल्स को चेंज करना पड़ता है, तो ये तो रिलेटिवली आसान काम है, ठीक। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में कितना चेंज आया, कितना इंप्रूवमेंट आया है, लोगों को फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस का लाइसेंस कितना टाइम लग रहा है, परमिशन बिजली का मीटर लगाने में और एक्चुअल मीटर इंस्टॉल करने में कितना टाइम लग रहा है, ये जो मेजरमेंट किया जाता है एक्चुअल, ये इंडिया के सारे शहरों में या डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया जाता, सिर्फ 2 शहरों में। तो लॉज और रूल्स तो जो हैं वो तो जनरली ऑल इंडिया, जिसमें जो भी चेंज किए जाते हैं या इम्प्रूव किए जाते हैं वो ऑल इंडिया उनका कवरेज है। लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट फील्ड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बिजनेसमैन को क्या फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, कितना एफिशिएंटली, कितना जल्दी काम हो रहा है, दिस मेजरमेंट इज नॉट जनरली स्ट्रिक्टली कैरिड आउट इन जस्ट 2 cities, मुंबई एंड दिल्ली। और आपको पता है कि मुंबई एंड दिल्ली are among the most progressive, most advanced cities in this country. They do not represent the average Indian city. तो जो हमारा है improvement in at the all India level, right? 2020 के लिए last year government ने indicate किया था कि probably they will add 2 more cities. Who will tell me which are those 2 cities? Anybody? I'll be still more pleased if somebody can answer this question. So ये Bangalore सब and अखबार Chennai. half right, half wrong. Did you say Bangalore and Chandigarh? Chennai, sir. No. As far as I know, it is Bangalore and Kolkata. Bangalore and Kolkata. But you can check. I am answering on the basis of my memory. So you should check. As far as I remember, it is Bangalore and Calcutta. Right? A few more comments on this. The Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has expressed the hope that India will be among the top 25 ranks by 24-25. What was the original target India has set itself? From 142 rank in 2014 to 50 rank by 2020. 20. And now our Commerce and Industry Minister has set another target, which is within top 25 ranks by 24-25. ये एक नया टारगेट है। वो कलकत्ता एंड बेंगलुरु है, ठीक। मैंने नोट्स अपने देख लिए, मेरे नोट पे कलकत्ता एंड बेंगलुरु है, तो नो लॉन्गर बेस्ड ऑन माय मेमोरी, यू कैन राइट दीज 2 नेम्स, राइट। देखिए, एक फाइनल कमेंट मैं और करना चाहता हूं। मैंने जो शुरू में भी आपको इसकी हिंट दिया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत से आपके पड़ोसी और भी जानते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का ने इसमें बहुत चैलेंजिंग टारगेट सेट किए एंड गवर्नमेंट हैज मेड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट और गवर्नमेंट उस अचीवमेंट को खूब पब्लिसाइज करती है। मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर को अपनी स्पीचेस में इसका मेंशन करते हुए देखा और बिल्कुल वेल डिजर्व मेंशन था वो। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अगेंस्ट कि हमारी परफॉर्मेंस गिर रही है, जैसे अभी आपने देखा GCI, जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स है, जैसे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जैसे जेंडर इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है, इन सभी इंडिकेटर्स के अगेंस्ट इंडिया की परफॉर्मेंस ह्यूजली गिरी है। 2 का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गिरी है करीब 10 रैंक, और इन्वायरमेंट में तो शायद 27 रैंक्स गिरी। अभी पिछले लेक्चर में ये बात हो रही थी। और जेंडर पर भी ऐसे ही कुछ परफॉर्मेंस गिरी है 17-18 रैंक्स की। इनका कोई मेंशन नहीं करता हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, और उस पर ध्यान भी नहीं देते।
कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहते हैं कि जिन्होंने असेसमेंट किया है वो इंडिया को नहीं समझते। भाई ये बड़ी अजीब बात है कि जहां हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो ये कहा जाता है कि हमने अचीव किया है, जहां परफॉर्मेंस खराब होती है वहां कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी कंटेस्ट को ठीक से समझा नहीं। मेरे ख्याल से बजाय इसके कि हम जो लोग असेसमेंट कर रहे हैं उनकी तरफ देखें, हमको देखना चाहिए कि ऑनेस्टली हमारे क्या वीकनेसेस हैं और उनको हमें एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी कम टू द एंड ऑफ द सेकेंड टॉपिक। मुझे लगता है इस रफ्तार से, लेकिन आपसे भी कुछ मैं पूछूं उसके बारे में। चलिए मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ऑनलाइन में ये है कि चूंकि आप लोग ज्यादा दिखते नहीं, ज्यादा कि आज तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, एक टाइम में कोई एक नाम ही मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे ये तसल्ली नहीं होती कि कम्युनिकेशन वन वे है या आप लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूं, मैं रिपीट करूं, क्या इसको मैं रिपीट करूं या आप लोगों में से कोई सवाल मैं पूछ सकता हूं? कैन आई आस्क क्वेश्चंस नाउ और डू यू वांट मी टू रिपीट? Yes, sir. You may ask question. Very good. So what is the new target for ease of doing business for India? So 25th rank by 2024 25th rank or less. or less. By which year? 2024. 24-25. By 24-25. And who has made this announcement? Who has set this target? Commerce and Industrial Minister Piyush Goyal. Mr. Piyush Goyal. Yes. Right. What is the main limitation of our achievement against ease of doing business? Somebody else, not you, somebody else. Let someone else answer this question. Hello. Ravi Kanji, Yes, sir. can you answer my question? Yes, sir. What is the Sir. main limitation of our achievement in this indicator? Sir, please repeat the question. I said, against ease of doing business, India has improved its rank from 142nd rank in 2014 to 63rd rank in 2019. But there is a serious limitation of this achievement. What is that limitation? One of you had answered this question a little while ago. It means either the communication is not effective or some of us are not attentively listening. Amina Sayyed, can you answer this question? Yes, sir. Please try. Did So you answer it last time also? No, sir. No, sir. Okay, good. Please go ahead. So one of the major limitation of the achievement is the data for the ease of doing business is taken from the two big cities of India, that is Mumbai and New Delhi, Right. which did not measure the average cities' performance. Right. So it doesn't reflect the overall national performance, improvement Yes, in national performance. Yes, sir. It is improvement only in these two cities. For 2020, India has promised to make this assessment in two more cities. Which Yes. are they? So Bangalore and Which are they? Calcutta. Bengaluru and Kolkata. Yes. Those are the correct names. Yes, sir. Bengaluru and Kolkata. Get used to the correct names. Yes, sir. All right. चलिए, तो हमने दो इंडिकेटर, एक हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब हुई है, गिरी है 10 रैंक ECI में, दूसरा बिजनेस जिसमें कि हमारी परफॉर्मेंस हुई है, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मगर उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि उसके अंदर जो असेसमेंट किया जाता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, असेसमेंट उसका एक पार्ट है,
ऐसा नहीं कि सब कुछ असेसमेंट ही है, ज्यादातर जो लॉज उसमें रूल्स में, तो अगर ये नया लॉ इंसॉल्वेंसी के बारे में बनाया गया है तो इंसॉल्वेंसी का लॉ खाली बंगलोर और खाली मुंबई और दिल्ली के लिए नहीं है, वो तो ऑल इंडिया है। ये मत समझिएगा वो लिमिटेशन जो हमारा जो है वो ओवरवेलमिंग सारे काम को, अच्छे अचीवमेंट को हमारे डाइल्यूट कर दे रहा है। उसका असेसमेंट किया जाता है कि भाई असल असर क्या हो रहा है, उसका फर्क क्या पड़ रहा है। कि अगर इंसॉल्वेंसी का नया कानून आया, एक नई ट्राइब्यूनल बना दी गई कि भाई इंसॉल्वेंसी के केसेस जल्दी सॉर्ट आउट कर दिए जाएं, तो कितना बचा इसका मेजरमेंट सिर्फ किया जाएगा दिल्ली में, बंबई में। हो सकता है कि ना हुआ हो, तो वो लिमिटेशन है, मगर उस लिमिटेशन को भी बहुत बड़ा लिमिटेशन मत समझिएगा, ठीक है। ऑल राइट, चलिए चलिए अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक का तो नाम है, इसके भी नोट्स नहीं मिले आपको? नो सर। डिलेइंग मैरिज नाम का एक आर्टिकल मैंने भेजा था, डिलेइंग मैरिज। ये छोटा सा एक एडिटोरियल है किसी न्यूज़पेपर का। किसी को मिले हैं जो यस बोले? डिलेइंग मैरिज अभी आपने सुना कि प्राइम जी? सर ये मिले हैं ये मिले हैं सर, ग्रुप किसी में को है ये। नहीं मिला? Anybody who has not received it? Hello? So I'm assuming everybody has received it. कितना छोटा सा आर्टिकल था। चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। A few days back, our Prime Minister had indicated that government is considering increasing the age of marriage for women, for girls. अभी क्या है मैरिज की एज? 18 सर। 18 मिनिमम एज 18 है, ठीक है। और वो गवर्नमेंट क्या प्रपोज कर रही है? सर 21 अभी बॉयज के लिए क्या एज लिमिट है? सर 21 सर 21 21। अच्छा ठीक। इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक और डिस्कशन की याद दिलाना चाहता हूं जो हमने पहले कभी को किया था। आप में से कुछ लोग जरूर उसमें रहे होंगे। जो मैंने क्लास में कुछ सेशंस लिए थे ऑन करंट अफेयर्स। डिड सम ऑफ यू अटेंड दोस क्लासेस? हेलो, do you remember attending my classes face to face in the RCA on some of the current affairs topics? No one? Hello? Salma Huda. I am seeing one name. No, no Salma sir. Huda. Salma. No Salma, sir, I'm only attending your online classes. so you have not attended any of my face-to-face classes? No sir. Okay. Is there anybody in this group who has attended my face-to-face classes? None. चलिए कोई बात नहीं। तो फिर मुझे एक और लेक्चर में जो मैंने बताया था उसका जिस्ट बताना पड़ेगा, तब आप इसको पूरी तरह से अप्रिशिएट करेंगे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। या तो हो सकता है कि उस क्लास को, उस टॉपिक को, किसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिस्कशन ये था कि पॉपुलेशन जो है वो एसेट है या लायबिलिटी है। अगर किसी मुल्क की आबादी ज्यादा है तो वो एक प्रॉब्लम है या एक अच्छी चीज है। ये इस पर डिस्कशन हुआ था और मैं सारा डिस्कशन तो रिपीट नहीं कर सकता, टाइम नहीं है। मोटे तौर पर हमने ये एक इम्पॉर्टेंट बात उस नतीजे पर पहुंचे थे कि इन
चेंज इन पॉपुलेशन, ये और जो मैं कहने जा रहा हूं दिस इज कॉमन सेंस। आप खुद सोचिए, किसी भी एक यूनिट को दिमाग में सोच लीजिए, चाहे कोई जिला, कोई स्टेट या कोई कंट्री, द पॉपुलेशन ऑफ दैट यूनिट, से इंडिया, इंडिया के पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? नंबर 1 रेट ऑफ बर्थ, यानी उसको दूसरे अल्फाज में आप फर्टिलिटी भी बोल सकते हैं। टोटल फर्टिलिटी मतलब कितना एक एवरेज औरत अपनी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा कर रही है, वही बर्थ रेट उससे डिटरमिन होता है। तो कितनी बर्थ हो रही हैं, बर्थ रेट उस पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन चेंज। डेथ रेट पर डिपेंड करता है, कितने लोग गुजर गए। एंड थर्ड फैक्टर इज माइग्रेशन, कितने लोग इंडिया से छोड़कर अमेरिका चले गए या अफ्रीका चले गए या कहीं भी चले गए, और कितने लोग बाहर से इंडिया आ गए। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है हमारे नेबरिंग कंट्री से कोई आ गया हो इंडिया में। तो इन तीन फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है इंडिया की पॉपुलेशन का चेंज। कोई और फैक्टर है जो आप जानते हैं कि जो मैटर करता हो? नहीं, मेरे नॉलेज में तो ये 3 फैक्टर्स हैं। इंडिया की या किसी भी कंट्री की या किसी भी प्रोविंस की किसी भी यूनिट को ले लीजिए, उसकी जो आबादी है ये इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है। बर्थ रेट रिफ्लेक्टेड बाय फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट डिपेंड करता है फर्टिलिटी के ऊपर। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक औरत, एवरेज वुमन जो है, वो अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा करती है। वो घटता बढ़ता रहता है। कभी कोई इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट 4 से ऊपर हुआ करता था, आजकल कितना है कोई बताएगा मुझे? TFR कितना है आजकल? अभी जो अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब कि लाइफ टाइम में ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमन प्रोड्यूसेस हाउ मेनी चिल्ड्रन? 2.2 सर। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। क्या नाम है आपका? सर बुशरा। थैंक यू बुशरा, थैंक यू बुशरा। और ये बताइए, अब आपने हमको टोटल फर्टिलिटी रेट बता दिया, तो आप में से कौन बताएगा? बुशरा आप थोड़ी देर के लिए मत बताइए, कोई और बताएगा कि रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है और कितना है इंडिया का? .2 का मतलब यह है कि एक इंडियन वुमन आज की तारीख में ऑन एन एवरेज, एक एवरेज इंडियन वुमन 2.2 बच्चे पैदा करती है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट रेट होता है वो फर्टिलिटी रेट, यानी फर्टिलिटी रेट इतना गिर जाए कि उसके उस पॉइंट के ऊपर पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाए, ना पॉपुलेशन बढ़े ना घटे। समझ गए? इज इट क्लियर? First, I explained to you the concept of TFR, total fertility rate. Total fertility rate is the average number of children, the number of children produced by an average woman. यानी जितने बच्चे औरतें जो बच्चे पैदा करती हैं, उनका अगर एवरेज निकाला जाए तो एवरेज ये निकलेगा कि एक औसत ये है कि एक और इंडियन वुमन जो है वो 2.2 बच्चे पैदा करती है। लेकिन ये औसत पहले हुआ करता था 4, 5, घटते घटते 2.2 पे आ गया है। वो ये और कितना घटे कि इंडिया की पॉपुलेशन रुक जाए, ना घटे ना बढ़े, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट, जब TFR इतना कम हो जाए कि अब आबादी रुक जाए, ग्रोथ रुक जाए, तो उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। और इंडिया का रिप्लेसमेंट रेट क्या है? कोई बताएगा? इंक्लूडिंग बुशरा? सर 1.6। नहीं, 2.1। 2.1। हाँ, यानी इंडिया ऑलरेडी 2.2 तक पहुंच चुका है। 2.1 पहुंचते ही हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच जाएंगे। हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नहीं, मामला 2-4 साल का तो नहीं है, मामला 2-3 डिकेड्स का है। शायद 2048 तक हम उम्मीद है, और ये भी हो सकता है उससे पहले भी हम लोग रिप्लेसमेंट, हमारा जो TFR है वो 2.1 हो जाए। अगर ये 2.2 से 2.1 हो जाए ऑल इंडिया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम अब रिप्लेसमेंट रेट पे पहुंच गए हैं।
रिप्लेसमेंट रेट पे पहुंच जाने का मतलब क्या हुआ कि अब बच्चे उतने ही पैदा हो रहे हैं जितनी की मौतें हो रही हैं और जितनी की माइग्रेशन से जो आबादी बढ़ रही है ये कम हो रही है। ठीक, यानी जितने लोग माइग्रेशन से नेट जा रहे हैं बाहर और जितनी मौतें हो रही हैं और जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बराबर हो गया। यानी अब ना आबादी घटेगी ना बढ़ेगी। अभी जहां तक मुझे याद है ये 2048 तक ऐसा हो जाने की उम्मीद है और ये उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से ये ट्रैक कर रहा हूं कि ये पीरियड घटता चला जा रहा है। पहले कह रहे थे कि 60s में हम पहुंचेंगे रिप्लेसमेंट रेट, अब हम कह रहे हैं लेट 40s में पहुंचेंगे। हो सकता है आज से 10 साल बाद आप सुने कि हम और जल्दी पहुंच जाएंगे। चलिए, ऐसा होगा तो अच्छा होगा। तो हम रिप्लेसमेंट रेट, अच्छा ये अभी किसी ने कहा 1.6, उसमें मुझे ये याद आया कि इंडिया की कई स्टेट्स ऑलरेडी रिप्लेसमेंट रेट्स के नीचे पहुंच चुकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट्स में से नहीं हैं। जो साउथ की स्टेट्स हैं ज्यादातर वो स्टेट्स हैं, और जो बड़ी बड़ी आबादी वाली स्टेट्स हैं, द बिगेस्ट स्टेट्स विद द बिगेस्ट पॉपुलेशन लाइक यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, the TFR is still quite high. In these states, the TFR is generally above 3. All India TFR कितना है? Total fertility rate 2.2, और ये हिंदी बेल्ट में जनरली 3 के ऊपर है। ठीक, लेकिन जो वेल परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं साउथ की, केरला वगैरह, वहां 1.6 पहुंच गया है। ठीक बात, क्लियर? तो Yes. मैंने क्या बताया अब तक ये आपको बताया कि किसी मुल्क की आबादी, किसी भी कंट्री की आबादी डिपेंड करती है फर्टिलिटी पर, यानी बर्थ रेट और फर्टिलिटी एक ही चीज है। डेथ रेट पे डिपेंड करती है, और तीसरा है माइग्रेशन के ऊपर। ठीक है, इन तीनों में से पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी, पहला वाला, नंबर 1। अच्छा, ये तीनों फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं? ये तीनों फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं? और खास तौर से ये जो बर्थ रेट है ये किस पे डिपेंड करता है? इसके भी 2-3 फैक्टर्स हैं। इसके भी 2-3 फैक्टर, देयर आर 2 or 3 फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट और नंबर 1 फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक रीजंस। सोशियो इकोनॉमिक रीजन का मतलब एजुकेशन। नहीं, ये जो हम बात कर रहे थे फर्टिलिटी घटती बढ़ती रहती है, हमने आपसे कहा कि पहले इंडिया में फर्टिलिटी 4% से भी ऊपर हुआ करती थी, अब वो 2.2 पर आ गई है। आज भी हम देख रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में फर्टिलिटी जो है वो विमेन की फर्टिलिटी 3.3 से ऊपर है, और बहुत सी स्टेट्स हैं साउथ की जहां 1.6 के आसपास पहुंच गई है। तो ये सब जो घटती बढ़ती रहती है ये किस पर डिपेंड करता है? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आबादी की तब्दीली, चेंज इन पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स: बर्थ रेट, दैट इज फर्टिलिटी, डेथ रेट, एंड नंबर 3 माइग्रेशन, कितने लोग अंदर आए, कितने लोग बाहर गए मुल्क के। ये तीनों फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1 फर्टिलिटी। बाकी तो भी है, मगर फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ये फर्टिलिटी। और ये बाकी 2 जो हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं 3 फैक्टर्स पे। नंबर 1 है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेशन। नंबर 2 इकोनॉमिक कंडीशन, यानी किसी भी आबादी में कितनी तालीम है, कितनी एजुकेशन है, कितनी शिक्षा है, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इस पर डिपेंड करता है फर्टिलिटी। मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अक्सर कुछ लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम में बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। ये डिपेंड करता है मजहब पे इतना डिपेंड नहीं करता। चलिए तो फिर लौट कर आऊंगा। हम बात कर रहे थे कि जो फर्टिलिटी है और माइग्रेशन है और डेथ रेट है, खास तौर से फर्टिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? वो 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन। फैक्टर नंबर 2 है कल्चर, और कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? रिलीजन। अक्सर लोग समझते हैं कि रिलीजन जो है डिटरमिन करता है कि जो मुसलमानों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ईसाइयों में कम बच्चे पैदा होते हैं, जैन में इतने होते हैं, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। कुछ रोल है मगर ज्यादा रोल नहीं है रिलीजन का। रिलीजन या कल्चर का पार्ट
है रिलीजन, उसका कुछ रोल है, ज्यादा रोल नहीं, बहुत मामूली रोल है। और तीसरा फैक्टर है सिक्योरिटी। जब जिस कंट्री में सिक्योरिटी नहीं होती वहां पर लोग बच्चे पैदा करना पसंद नहीं करते, क्योंकि अपनी ही जिंदगी का ठिकाना नहीं है। तो जहां जंग चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, जैसे कॉन्गो है और बहुत से मुल्क हैं जहां पर बरसों से, अफगानिस्तान के अंदर बरसों से बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो अक्सर कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, यार मैं नहीं कह रहा हूँ 100% ये ट्रू है, ऐसा माना जाता है कि सिक्योरिटी भी इस बात पर इन्फ्लुएंस करती है कि लोग बच्चे कितने रखेंगे। हो सकता है कि अफगानिस्तान के अंदर आज बच्चे कम पैदा हो रहे हों, आज से 50 साल पहले जब सिक्योरिटी ज्यादा थी ज्यादा पैदा करते होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में तो मैं समझता हूँ TFR अभी भी काफी हाई होगा इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में। मगर हो सकता है जब उनके यहाँ सिक्योरिटी बेहतर रही हो 50 साल पहले, तब उनके यहाँ और ज्यादा बच्चे लोग पैदा करते हो, शायद, मुझे पक्का पता नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ। अच्छा भाई, फिर दोहराता हूँ, मैंने ये कहा कि किसी भी मुल्क की आबादी का घटना बढ़ना, चेंज इन पॉपुलेशन, डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स: फर्टिलिटी, नंबर 2 डेथ रेट, एंड नंबर 3, और कोई बोलेगा नंबर 3? Migration, sir. Migration. Very good. Migration. And these 3 factors put together, especially fertility, depends upon again 3 factors. वो 3 factors कौन से हैं? सोशियो-इकोनॉमिक कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस। अच्छा, और दूसरा है कल्चर, और कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजन, और नंबर 3 सिक्योरिटी। और इन तीनों में भी ये 3 कौन? सोशियो इकोनॉमिक, कल्चर, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला वाला, सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी 2018 के कुछ डेटा आया है, उसने इतना बढ़िया रिजल्ट शो किया है कि वो ये रिश्ता एकदम साफ जाहिर हो गया। अभी मैं आपको डेटा बताऊंगा और आपको याद भी कराने की कोशिश करूंगा, वो याद कर लीजिए। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अभी 2018 का जो डेटा आया है उसको SRS डेटा बोलते हैं, आप चाहे देख लीजिए, SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS डेटा 2018, ये सोर्स है उसका। SRS डेटा 2018 का अभी आया है कुछ ही हफ्तों पहले। उसने ये जाहिर किया है, और ये विमेन के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, सबके लिए इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये जो TFR है, ये विमेन की एजुकेशन के ऊपर कितना ह्यूजली डिपेंडेंट है, आपने अभी मैंने आपसे बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि इंडिया में TFR कितना है अभी? 2.2 सर। 2.2, वेरी गुड। आपको मालूम है, अब विमेन को क्लासिफाई करिए इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ एजुकेशन। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो अनएजुकेटेड विमेन है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उनके अंदर TFR कितना है? कैन एनीबॉडी गेस? सर 2.3। नहीं भाई, 3 सॉरी, यस सर। जो इलिटरेट विमेन है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उनके अंदर TFR है 3, और जिन्होंने प्राइमरी तक पढ़ा है, दर्जा 5 तक पढ़ा है, उनके अंदर 2.5। आप चाहे तो नोट कर लें, हालांकि ये आर्टिकल मैंने शेयर किया हुआ आपसे, उसमें ये फिगर्स दिए हुए हैं। कुछ फिगर्स ऐसे भी होंगे शायद मैं बताऊं जो इसमें नहीं दिए गए हैं उस आर्टिकल में। TFR फॉर इलिटरेट विमेन इज 3.0, दोज विद प्राइमरी एजुकेशन इज 2.5, और जिन्होंने दर्जा 10 तक पढ़ा है, मैट्रिक या हाई स्कूल, उनके अंदर TFR कितना है? 1.9, और ग्रेजुएट्स का कितना है? 1.7, और बीच में वो रह गए जो 12th पास हैं, उनका 1.8 है, जो इस पेपर में नहीं दिया है। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए, इतना ऐसा क्लियर कोरिलेशन मुझे नहीं लगता पहले कभी सामने आया होगा, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में नहीं है, कि इंडिया का टोटल TFR तो वुमन के रिलेट करता है कि एक एवरेज वुमन कितने बच्चे अपनी जिंदगी में पैदा करती है, 2.2 पैदा करती है, और उसके अंदर से जो इलिटरेट हैं वो 3 पैदा करती हैं, जो 5th क्लास तक पढ़ी हैं 2.5, क्लास 10 तक 1.9, कैसे कैसे कम होता चला जा रहा है। क्लास 10th के लिए 1.9, क्लास 12 के लिए 12th के लिए नहीं, इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं यूपी में, उसको 1.8, और ग्रेजुएट्स के लिए 1.7। ये ऐसा कोरिलेशन तो कभी सामने आया ही नहीं, स्टार्टलिंग की तालीम। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था
कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक कंडीशन और एजुकेशन। देखिए एजुकेशन का कितना क्लियर रोल दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये ऐसा मत मानिएगा कि सिर्फ एजुकेशन ही मैटर करती है। एक छोटी सी बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं इस मुल्क में कि मुसलमानों में बच्चे बहुत पैदा होते हैं और वो समझते हैं कि शायद रिलीजन इसको डिटरमिन करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ या मैं मुसलमानों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है, वही एक फैक्टर सोशो इकोनॉमिक। आपको पता है कि मुस्लिम विमेन जो बिहार में हैं उनका टीएफआर कितना है, और जो केरला में है मुस्लिम विमेन उनका टीएफआर कितना है? आप में से किसी को पता है? बिहार की विमेन का टीएफआर 3 से ऊपर है और केरला की मुस्लिम विमेन, ये मुस्लिम विमेन की बात है, while the TFR of Muslims in UP is 3.10, it is 1.86 in Kerala. अगर रिलीजन ही सबसे बड़ा फैक्टर या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता फर्टिलिटी का या पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो फिर वो भी मुसलमान है, केरला की औरतें और बिहार की औरतें भी मुसलमान है। तो फिर एक सा क्यों नहीं? इतना जबरदस्त फर्क क्यों? ऑलमोस्ट दुगने का फर्क क्यों है? इसकी वजह यह है कि दोनों के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस फर्क हैं। बिहार की मुसलमान औरत बच्चे कम या ज्यादा पैदा करती है बिकॉज ऑफ द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिहार। वहां जो एजुकेशन है, वहां पर जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उसके हिसाब से। और केरला की मुस्लिम वीमेन की जो फर्टिलिटी डिपेंड करती है केरला की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। वहां जो एजुकेशन है, आपको मालूम होगा कि वहां हाईएस्ट लिटरेसी है इंडिया की, और वहां के जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है उसके हिसाब से फर्टिलिटी रेट डिटरमिन होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये मामला रिलीजन का नहीं है। जो लोग समझते हैं वो उनका बिल्कुल भ्रम है, गलत है, उनकी गलती है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार कोशिश तो करती है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, और वो कोशिशें किसी हद तक हमको उनको हमदर्दी से देखना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट भी करना चाहिए, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी सारी बातचीत जो हमने अभी आपसे की है उसका लब्बे लुबाब ये है, इसका क्रक्स ये है, the crux of whatever I have told you is that fertility, things like change in population largely depend upon socio-economic conditions. They depend upon fertility, and fertility depends upon socio-economic conditions, which is education and economic opportunities available in a particular context. आप जब तक ये दो चीजें नहीं बदलेंगे, लाख कानून बनाते रहिए, लाख रूल बनाते रहिए, उसके अंदर कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। कई बार सरकारों ने कोशिश की, आपको तो याद नहीं होगा, 77 के अंदर बहुत जबरदस्त कोशिश की गई, ऑलमोस्ट फोर्स स्टरलाइजेशन किए गए, बहुत से इंसेंटिव भी दिए गए और कोशिश की गई कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, मगर वो सारे मेजर्स काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो पार्टी इस सारा जोर जबरदस्ती कर रही थी वो पावर से हट गई, अगला इलेक्शन हार गई, मगर उसका पॉपुलेशन पे कोई खास असर नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब ये, कोई भी कोशिश, बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा समझते हैं कि पॉपुलेशन को हम कोई आर्टिफिशियल रूल बना करके, कोई लॉ पास करके, कोई इंसेंटिव दे करके हम बहुत बड़ा चेंज कर लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ऐसा कोई सरकार करती है तो उसको आप हमदर्दी से देखिए, उससे कोऑपरेट कीजिए जहां तक हो सके, लेकिन उससे बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। अल्टीमेटली वो तभी चेंजेस आएंगे जबकि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बदलेंगी, क्योंकि गरीब से गरीब माँ भी उन्हीं हालात में ज्यादा बच्चे पैदा करती है जब उसको सिक्योरिटी नहीं होती कि हमारा बच्चा सर्वाइव करेगा। जब उसको लगता है कि हमारा बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा तो ज्यादा बच्चे पैदा करती है। और जहां पर अच्छी हेल्थ कंडीशंस हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस जहां अच्छी होती हैं, वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी होती हैं, जहां एजुकेशन होती है, जहां तालीम होती है, वहां पर एनलाइटनमेंट होता है, लोग अपना भला समझते हैं कि कम बच्चों में ही भला है, वो कम बच्चे पैदा करते हैं। आर्टिफिशियली रूल बना, यही मामला हमने इतना लंबा चौड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको क्यों दिया? ये लंबा चौड़ा कॉन्टेक्स्ट हमको इसलिए दिया कि आज गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है डिलेइंग मैरिज 18 से 21 करने की,
अगर उनका मकसद ये है कि जो कि कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कुछ सोच रहे हैं, इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, तो उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा। आपने ये आर्टिकल पढ़ा, डिलेइंग मैरिज? हेलो? यस सर। अच्छा, अगर आपने इसे पढ़ा है तो इसमें इन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इसके खिलाफ, डिलेइंग मैरिज के खिलाफ। कोई आर्ग्यूमेंट बता सकते हैं मुझको? इन्होंने कहा है कि 18 से 21 करने की जरूरत नहीं है, कुछ इसके आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। कोई आर्ग्यूमेंट बताइए। सर 18, एक तो ये उन्होंने बताया कि 18 जो है वो वोटिंग का भी एज होता है, हाँ तो इसको 18 से 21 करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और भी कुछ और भी आर्ग्यूमेंट है। इसी में क्या है, वोटिंग का एज है, लाइसेंस टू ड्राइव है, यस सर, लाइसेंस है, इवन यू कैन रजिस्टर ए कंपनी एट द एज ऑफ 18। कंपनी। यस सर। ये सारी चीजें 18 पर हैं, तो फिर तो शादी की में क्या प्रॉब्लम है? बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो लड़कों की एज 18 से 21 की गई है, इसका कोई खास जस्टिफिकेशन नहीं है। इसके कई लोग उसको बहुत क्रिटिक हैं, इसके को पसंद नहीं करते, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और भी कुछ और दिया है। एक और क्या लिया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिकेट्स दैट women aged 20 to 24 who married before turning 18 fell sharply। यानी 20 से 24 साल की उम्र की औरतों में जिन्होंने कि 18 साल से पहले शादी की थी, उनका परसेंटेज 2005-6 में हुआ करता था 47 के आसपास, वो घटकर 26 रह गया। यानी कि 18 साल से कम उम्र की और शादी का चलन अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब ये 10 सालों में फर्क इतना हो गया कि 47.4 से 26% हो गया। ये दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया। ये बेस था SRS के ऊपर, वही जो मैं आपको बता था, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से। एक और इन्होंने बहुत अच्छी फिगर दी है कि an incredibly low 2.3% females were effectively married before turning 18। यानी अभी एक और आया है, सॉरी, वो जो आंकड़े पहले बताए थे वो 47-26 वाले, वो बेस्ड थे ऑन NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर। और SRS 18 जो अभी आया है, जिसके बारे में अभी आपसे बात हो रही थी, उसने ये बताया कि ओनली 2.3% फीमेल्स वर इफेक्टिवली मैरिड बिफोर टर्निंग 18। यानी 18 साल से कम जो औरतें शादी कर रही हैं वो सिर्फ 2.3% हैं। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस सर। If only 2.3% women are marrying before 18, so why change the age limit? And as I told you, such things depend upon socio-economic conditions. Education बढ़ेगी तो औरतें खुद ही से खुद, ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि 18 साल पे शादी कर देने से औरतें जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ जा सकेंगी, 18 से 21 कर देने पर जा सकेंगी। जिसको एजुकेशन में जाना है वो जाएगा, वो शादी लेट करेगा, और जो एजुकेशन में बच्चे जा रहे हैं वो लेट ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। इसलिए कोई शादी डिले करे कि वो उसको एजुकेशन जाना है, ये शायद वर्कआउट नहीं करेगा। आप में से किसी को कोई व्यू है इसके बारे में? बताइए, हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो। Anybody who has any views on this? Do you think it will be helpful to increase the age limit from 18 to 21? Anybody, boy or girl? Hello. सलमा हुदा, आपका नाम ही दिखाई पड़ रहा है मुझे। You want to answer this question? यस सर। बताइए आपका क्या व्यू है। भूल जाइए कि मैंने क्या कहा और इस आर्टिकल में क्या लिखा है। यस सर। आपको लगता है ये एज लिमिट बढ़ाना 18 से 21 सही स्टेप है? इससे कुछ फायदा होगा? सर बहुत ज्यादा चेंजेस तो कोई ऐसे नहीं आएंगे, बिकॉज अच्छा। यस सर। क्योंकि जिसको पढ़ना है, जिसके लिए पढ़ना प्रायोरिटी जो है। ये चीजें हो रही है 18 के पहले, जो मैरिज पहले जो होती थी वो ऑब्वियसली सर अभी 18 के जब ये लॉ है कि 18 पे शादी हो सकती है, तो उसके बावजूद सर ये चीज काफी डिक्रीज हुआ है कि लोग खुद से ही 18 से पहले अब कोई शादी नहीं कर रहा है, मैक्सिमम लोग। क्योंकि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही है ओवरऑल। यस सर। तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशन और इकोनॉमिक्स पे
कि बिल्कुल। चीजें कैसे होंगी। हाँ, और क्योंकि जिसको जिसको वाकई पढ़ने के लिए सीरियस है वो तो Yes, खुद ही sir. से शादी नहीं करेगा, चाहे कानून कुछ भी हो, एज लिमिट 18 हो या 21 हो, क्योंकि अब Yes, तो sir. इतनी शादियां हो रही हैं लड़कियों की 25 से 30 और फिर 30 के बाद भी, Yes, sir. और इसको बिल्कुल कुछ मायूब या बुरा नहीं माना जाता, बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। बड़े लड़कों की शादियां ही 30 प्लस पे हुआ करती थी, मगर अब तो मेरे खानदान में खुद मैं जानता हूँ ढेरों शादियां लड़कियों की 30 के आसपास हो रही हैं, 29, 30, 31, एवरेज एज 30 अब होती जा रही है, क्योंकि Yes, sir. अभी तक वो लोग प्रोफेशनली सेटल हो पाती है ठीक से। और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से कि अब बहुत से बॉयज एंड गर्ल्स मैरिजेस डिले कर रहे हैं, और मैरिजेस हो जाने के बाद भी चाइल्ड बर्थ को डिले कर रहे हैं। एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू दोस। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का ये जो मूव है, ये इसके साथ हमको सिंपैथी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ज्यादा बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी सीख हमने पहले अपने एक लेक्चर से सीखी थी, जिसका कि जिस्ट मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ, फर्टिलिटी, ये सारी चीजें अल्टीमेटली सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पर, और उसमें भी पर्टिकुलरली एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है फैमिली की और सोसाइटी की, उस पर डिपेंड करता है। जबरदस्ती ऊपर से कोई कानून, कोई रूल, कोई कोर्शन लादने की जरूरत नहीं है, which may prove to be counterproductive। ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है, मगर मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें। आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये जो लोग अभी बोल रहे थे वो नहीं, इनमें कोई नया बोले तो मुझे अच्छा लगेगा कि अभी मैंने कुछ डेटा बताया बेस्ड ऑन SRS 2018, जिसमें कि एक कोरिलेशन एस्टैब्लिश हुआ है बिटवीन लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द फर्टिलिटी रेट। वो क्या कोरिलेशन एस्टैब्लिश हुआ है? So the Anybody who hasn't spoken on this topic? so the correlation which we can establish from the data of TFR हाँ, जी। is the more educated the woman is, the TFR is declining. Right. Like So what is the TFR for graduate? Yes, sir. women? What is the TFR for graduate women? Sir, the TFR for 1.7. graduate is 1.7. Okay. And what is the TFR for illiterate? Sir, 3. Right. And what high school pass Sir, 1.9. and intermediate pass? Sir, 1.8. Good. अगर आप सब लोग इसको याद कर लें तो बहुत इंटरेस्टिंग, ये बहुत अच्छा आंकड़ा आया है, साफ जाहिर हो गया कि तालीम का कितना जोरदार असर है। लेकिन ये धोखा मत खाइएगा कि सिर्फ तालीम का ही ये असर है। तालीम बड़ा फैक्टर है, मेरा अकेला फैक्टर नहीं है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इलिटरेट वुमेन कम बच्चे पैदा करेंगी अगर वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, अगर उनको गारंटी हो मजबूर एक औरत को भी कि उसका एक बच्चा या 2 बच्चे सरवाइव करेंगे, तो वो 6 बच्चे नहीं पैदा करेंगे। उसको मालूम है कि 6 बच्चे पैदा करने में कितनी दिक्कतें हैं, उनको पालने पोसने में कितनी परेशानियां हैं, ठीक है। तो आपको मतलब देखिए, ये टॉपिक मैंने इसलिए चुने हैं कि इससे आपको एक अप्रोच मिल रही है। सिर्फ बात ये नहीं कि एक नई चीज आपने याद कर ली, अब आपको ये जो पॉपुलेशन से रिलेटेड, TFR से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, उनकी तरफ देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। जो लोग whatever reasons झूठे सच्चे इल्जाम लगाते रहते हैं कि फला कम्युनिटी ज्यादा बच्चे पैदा कर रही है, ये सब भ्रम है, सब झूठ है। आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, या होता कुछ लोगों को पता भी हो कि पिछले 10 सालों के अंदर NFHS आया था 5-6 का, और एक NFHS आया है ये क्या बोलते हैं 15-16 का। इसके अंदर सबसे ज्यादा फर्टिलिटी में कमी किस कम्युनिटी में आई है? कम्युनिटी से मतलब रिलीजियस कम्युनिटी। नेशनल एवरेज में कितनी कमी आई है TFR में, और हिंदूज में, मुस्लिम्स में, क्रिश्चियन में, इसके बारे में पता है आपको? आप में से किसी को पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, आई एम नॉट सरप्राइज। मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। बिटवीन द ईयर्स 2005-6 and 15-16 people of all religions saw fertility rate drop। मतलब 5, 6 और 15, 16 के बीच में हर रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ। However, decline in the Muslim population,
was the highest. Among the Hindus, it was 17.8%. Among Muslims, was 22.9%. आइए अब हम fertility rate में क्या decline हुआ 10 साल में? वो 10 साल कौन से? Between 2005-6 and 2015-16. Fertility declined by 40.8% among Muslims इस पीरियड के अंदर, यानी 2005-6 से लेकर 15-16 के बीच में मुस्लिम विमेन में फर्टिलिटी में कमी आई 40.8%, और नेशनल लेवल पर पूरे मुल्क में कितनी कमी आई? 35.7, यानी नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा कमी आई है मुसलमान औरतों में। और हिंदूज में कितना आया? 35.5, यानी फिर कंपेयर कीजिए, हिंदूज में 35.5 कमी आई है फर्टिलिटी रेट में, मगर मुसलमानों में 40.8। तो ये इल्जाम, ये सोचना कि ये मामला रिलीजन से लिंक्ड है, रिलीजन से लिंक नहीं है, ये मामला सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से लिंक्ड है। मुसलमानों की जब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में इंप्रूवमेंट हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उनके डिक्लाइन इनफर्टिलिटी रेट में। जैंस का भी काफी हाई है, एनीवे उसमें हम अब जाने की जरूरत नहीं है। राइट, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि TFR जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उन स्टेट्स के अंदर जहां पर कि मुसलमानों की आबादी मैक्सिमम है, वो कौन सी स्टेट है जहां मुसलमानों की आबादी मैक्सिमम है इंडिया में? 3 स्टेट्स का नाम लीजिए। यूपी, वेस्ट बंगाल, केरला। यूपी में क्या परसेंटेज है? 28। अरे बिल्कुल गलत। तेलंगाना। अरे आप JNK को भूल गए। यस सर जी। सबसे पहले तो JNK का नाम लेना चाहिए था। चलिए, ये गलती मैं कर रहा हूँ कि स्टेट को बोल रहा हूँ, अब स्टेट नहीं है तो यूनियन टेरिटरी है। तो अगर आपने इसलिए एक्सक्लूड किया तो बिल्कुल सही एक्सक्लूड किया। अब बताइए 3 स्टेट्स, मैं परसेंटेज पूछ रहा हूँ, हाईएस्ट परसेंटेज। तो केरला, तेलंगाना। केरला तेलंगाना में कितनी है परसेंटेज? नहीं, केरला में 25 है के करीब, 26 है, और असम में 30 के ऊपर है। तो अगर आप और स्टेट और यूनियन टेरिटरी सब शामिल कर लें तो नंबर 1 JNK, नंबर 2 असम 30%, नंबर 3 होगा शायद केरला, और नंबर 4 होगा वेस्ट बंगाल। यूपी में नंबर ज्यादा है मुसलमानों के, लेकिन परसेंटेज 20 है। ठीक, और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जहाँ सबसे ज्यादा है JNK, असम और केरला, वहां पर TFR सबसे कम है, खासतौर से केरला में और दूसरी सदर्न स्टेट में जहाँ सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है। तो वो कुछ लोगों को जानबूझ के उस अफवाह को फैलाते थे, कुछ लोग जेन्युइनली उस अफवाह का शिकार थे। बहुत से मुसलमान भी ऐसा समझते थे कि शायद मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। मामला मुसलमान हिंदू का नहीं था, और मैं मुसलमान हिंदू की तफरीक में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, और मैं बिल्कुल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे मुसलमानों को डिफेंड करना है, क्योंकि ये हमको समझने की जरूरत है कि क्या चीजें रियली वर्क कर रही हैं। रियली वर्क, रिलीजन फैक्टर है मगर बहुत छोटा फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। वही एक्सप्लेन करता है कि केरला के में मुसलमान वुमेन का TFR जो है 1.8 है, और बिहार की मुसलमान वुमेन का TFR है 3.1। इतना लंबा गैप जो है वो रिलीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो एक्सप्लेन करता है इन दोनों स्टेट्स की जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, एजुकेशन एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में जो फर्क है, उसकी वजह से ये डिटरमिन हो रहा है। चलिए, अब लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। वो क्या टॉपिक है पता है आप लोगों को? कोई मुझे बताएगा अगला टॉपिक क्या है? हेलो, अगर नहीं पता तो भी बताइए कि नहीं पता, क्योंकि मैं आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे पूछूं कि भाई मैंने तो टॉपिक कम्युनिकेट कर दिया था कई दिन पहले। नहीं सर, हम लोग को नहीं पता है। भाई इसके मतलब कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। मैं तो एटलीस्ट 2 दिन पहले सारे टॉपिक हैंड आउट, और ये जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं वो तो भेजे हुए 1 हफ्ता हो गया।
ये जो आर्टिकल्स हैं ये भी भेजे हुए कम से कम 2-3 तो हो ही गया होगा। एनीवे चलिए तो आगे की बात है। अगला टॉपिक है, अभी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अनाउंसमेंट किया है, प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। नोट कर लीजिए, प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ये लॉन्च किया है। The platform for ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, जो टैक्सेशन का सिस्टम है ये पर्टिकुलरली इनकम टैक्स की तरफ फोकस्ड है, जहां तक मुझे पता है कि जो इनकम टैक्स के अंदर अब तक बहुत शिकायतें होती थी ना कि भाई वो बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है और बड़ा हैरेसमेंट करते हैं टैक्स पेयर का, एसएससीज का, और हैरेसमेंट के अलावा जो फेस टू फेस असेसमेंट होते हैं। देखिए आपको पता होगा कि इनकम टैक्स के जो असेसमेंट होते हैं वो पहले, बहुत पहले, आज से कुछ 50-60 साल पहले लगभग हर टैक्स पेयर अपना रिटर्न जमा करता था, अभी भी करता है, और जो भी रिटर्न जमा करता था लगभग सारे लोगों को इनकम टैक्स ऑफिस बुला लिया जाता था एक नोटिस भेज करके, और फिर इनकम टैक्स ऑफिसर और वो एसएससी जिसका जो टैक्स पेयर है वो फेस टू फेस बैठ के वो एक डायलॉग और डिस्कशन शुरू होता था। वो उसका ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट देखते थे, सारा हिसाब किताब देखते थे कि आपने इनकम इतनी शो की है, उसमें खर्चा इतना दिखाया है, ये सही है गलत है, इसमें से ये अलाउड है ये नहीं अलाउड है। उस पर बहस होती थी, उसको सबूत मांगते थे, उस सबूत को मानते थे, कभी रिजेक्ट करते थे, और उसके अंदर कहा जाता था कि ये बहुत वक्त जाया होता है और उसमें बहुत करप्शन का स्कोप भी है। कई बार अगर गलती पकड़ लेता था इनकम टैक्स ऑफिसर तो उसका भी इम्कान था कि वो कुछ पैसा लेके वो गलती को इग्नोर कर दे, क्योंकि गलती तो उसको ही पता है, सिर्फ रिकॉर्ड तो उसी ने देखे हैं, वो रिकॉर्ड तो वापस चले जाएंगे। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो जिसे कहते हैं इस तरह के असेसमेंट जो होते हैं इसको कहते हैं स्क्रूटिनी असेसमेंट, यानी कि जिसमें कि फेस टू फेस इंटरफेस होता है बिटवीन टैक्स पेयर एंड द इनकम टैक्स ऑफिसर। So it was decided that the percentage of scrutiny assessment should be reduced. I repeat, scrutiny assessment is a process of assessment where the taxpayer and the assessing officer, that is the tax officer, sit face to face and they have discussions in one sitting, two sittings, three sittings, where books of accounts are examined, details are checked, and evidence is collected or asked for. Sometimes statements are recorded. An income tax officer is a quasi-judicial authority. They have the same powers as a magistrate under the Evidence Act. So any statement recorded before a police officer, is it admissible in a court of law? अगर आप कोई बयान किसी पुलिस ऑफिसर के सामने दें तो क्या उस बयान को कोर्ट में और सबूत के वो पुलिस ऑफिसर पेश कर सकता है? no sir. No, sir. No sir. हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के सामने दिया हुआ बयान जो है वो एक्ट में एडमिसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने कोई स्टेटमेंट दिया और सिग्नेचर किया उसके ऊपर तो फिर वो एडमिसिबल है, वो एविडेंस है। उसको गलत साबित करने के लिए आपको फर्दर एविडेंस देना पड़ेगा कि ये कॉन्कॉक्टेड है या गलत है, ये स्टेटमेंट आपने नहीं दिया। अगर ये साबित हो जाता है कि आपने स्टेटमेंट दिया तो वो कोर्ट मान लेगी कि ये सही स्टेटमेंट। अगर आपने अपनी गलती इसमें मान ली है तो फिर मान ली है, वही गलती कोर्ट अपहोल्ड करेगा। तो ये प्रोसेस हुआ करता है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस ये हमने देखा सीखा अमेरिका से। अमेरिका में ज्यादातर असेसमेंट बहुत साल पहले से ही वो समरी असेसमेंट होता है, या आपने रिटर्न जमा किया, उन्होंने मोटे तौर पर मोटी मोटी चीजें मशीन से चेक करके और आपको एक्सेप्ट करके भेज दिया। छोटा मोटा रिफंड हुआ तो रिफंड दिया, बड़ा भी हुआ रिफंड हुआ तो आपको रिफंड दे दिया। अगर आपने टैक्स ज्यादा पे किया है तो जो एक्सेस अमाउंट है वो रिफंड हो जाता है, उसको रिफंड करते हैं। तो धीरे धीरे जो दो तरह के असेसमेंट हुए ना, स्क्रूटिनी जिसमें फेस टू फेस मुलाकात होती है टैक्स पेयर और ऑफिसर टैक्स ऑफिसर की, और दूसरा होता है समरी। समरी का मतलब आपने रिटर्न जमा किया और समरीली उसको एक्सेप्ट करके, स्क्रूटिनाइज करके और एक्सेप्ट कर लिया गया। मोटे तौर पर कुछ छोटी मोटी गलतियां अगर होती हैं उसको सुधार कर लेते हैं, बाकी ज्यादातर। तो अब ये हालत हो गई है कि लेस देन 0.5% जो रिटर्न जमा होते हैं, लेस देन 0.5% रिटर्न जो जमा होते हैं वो उनकी स्क्रूटिनी होती है, यानी उनको फेस टू फेस के लिए बुलाया जाता है। अब परसेंटेज रह गया खाली 0.29% या 0.3% के करीब स्क्रूटिनी होते हैं केसेस में। बाकी सारे असेसमेंट्स जो है, रिटर्न्स जो हैं,
वो जैसा भी टैक्स पेयर फाइल करता है, ये सारी बात मैं इनकम टैक्स की कर रहा हूँ, उसके अंदर वो एक्सेप्ट हो जाते हैं और वो समरली जो अगर कोई रिफंड है तो रिफंड मिल जाता है, ठीक है। तो ये मगर फिर भी शिकायतें हैं हरेसमेंट की। 0.29% परसेंटेज तो बहुत कम हो गया, लेकिन ये 0.29% आमतौर से बहुत बड़े एसएससी होते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, तो वो अभी भी इनको जिनको टैक्स ऑफिसर्स को फेस करना पड़ता है, उनका वो फील करते हैं कई बार कि उनको हेरेस किया जा रहा है, कि बुला लिया, बाहर बैठा दिया घंटों के लिए, सुबह बुलाया, शाम को अंदर आने का मौका दिया और फिर 10 मिनट सुन के कहा कि हम 3 दिन बाद फिर आ जाओ। ये तो हेरेस किया और परेशान भी करते हैं, कई बार करप्शन के चार्जेस भी होते हैं उनके खिलाफ। तो इन सभी पॉसिबिलिटीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि अब सारे मोस्टली और सारे असेसमेंट या सारे असेसमेंट जो हैं वो फेसलेस असेसमेंट के थ्रू होंगे, कि जो इंसान, जो टैक्स ऑफिसर whoever is making an assessment, the tax officer who is assessing a case under scrutiny assessment process, and the assessee or the taxpayer whose case is being assessed, both do not know each other. faceless का ये मतलब हुआ कि अगर अभी भी कुछ केसेस में स्क्रूटनी होगी तो वो स्क्रूटनी फेसलेस होगी। आइडिया ये है, फेसलेस का मतलब कि tax officer will not know who is the taxpayer being scrutinized, whose case is being scrutinized or checked. और दूसरी बात ये कि फेस टू फेस कभी मुलाकात नहीं होगी। अब ये जो प्लेटफॉर्म नया लॉन्च किया है, इसका यही मकसद है कि अब फेस टू फेस असेसमेंट खत्म कर देंगे। स्क्रूटनी होगी कुछ केसेस में, जैसे अभी भी होती है, चाहे 0.29% केसेस में, तो वो स्क्रूटनी फेसलेस स्क्रूटनी होगी। A few cases will be randomly picked for scrutiny, but the tax officer will not know who these cases are, the name of the company or the name of the individual, they will not know. And similarly, the company or the individual who is being picked up for scrutiny assessment, they will not know who is making an assessment and where is that person sitting. If a case belongs to, say, Ludhiana, the assessing officers might be sitting in Bangalore. So that is the idea of this platform. I repeat, the platform for transparent taxation. एक तो ये चेंज गवर्नमेंट लाएगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। दूसरा, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक टैक्सपेयर्स का टैक्सपेयर्स चार्टर, ये वर्ड यूज कर लिए, टैक्सपेयर्स चार्टर। टैक्सपेयर चार्टर का मतलब ये होता है प्राइमरीली कि टैक्सपेयर के क्या राइट्स हैं, दैट they should be treated with dignity, with respect, and efficiently. The cases should be handled efficiently in a transparent manner, etc., etc. और उनकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी। तो एक चार्टर गवर्नमेंट अनाउंस करेगी जिसके अंदर की टैक्स पेयर के राइट्स और ड्यूटीज क्लियरली स्पेल्ड आउट होंगे, जो अब तक नहीं किया गया था। और कुल मिलाकर आइडिया ये है कि एक टैक्स पेयर फ्रेंडली रिजीम एस्टेब्लिश की जाएगी। मतलब अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा दी जाएगी, वो अलग चीज है। लेकिन सजा देने का मतलब ये नहीं कि वो कोई कि कुल मिलाकर हर किसी एसएससी को आप हरेस करते रहें। खास तौर से जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, उनको ऑनर करने की जरूरत है, उनके लिए नई फैसिलिटीज क्रिएट करने की जरूरत है। ये आइडिया है इस नए फोरम का। एक सेंटेंस में पढ़ रहा हूं इस आर्टिकल से, द गवर्नमेंट्स थ्रस्ट इज टुवर्ड्स इम्पार्टिंग ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी व्हाइल एलिमिनेटिंग फिजिकल इंटरफेस। फिजिकल इंटरफेस को खत्म कर देंगे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे, बढ़ाएंगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगे और जो करप्शन के चांसेस हैं उनको मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है। टैक्स पेयर चार्टर के बारे में कुछ लिखा है, द टैक्स पेयर चार्टर इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स assuring the taxpayer of fair, courteous and rational behavior. अब तक बिहेवियर कर्टियस नहीं था, आपको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहा हूं लगभग 10 साल। मेरे बारे में अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो ये पता होगा कि मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन की थी। लगभग 10 साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहा। मेरी पोस्टिंग्स यूपी में रही, गोरखपुर, सीतापुर और बनारस। सबसे पहले बनारस, गोरखपुर, फिर सीतापुर। फिर वहां से मैं प्रमोट होके चला गया था दिल्ली।
दिल्ली में मेरी पोस्टिंग रही, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग ITO में बैठता रहा कई साल तक। फिर वहीं से मैं चला गया था ऑन डेपुटेशन टू अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मैं सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी प्लानिंग, सेक्रेटरी टूरिज्म वगैरह वगैरह। 6 डिपार्टमेंट्स का मैं सेक्रेटरी रहा, कई पब्लिक कंपनीज का मैं डायरेक्टर रहा। आइए, मैं बात कर रहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अपने एक्सपीरियंस की। तो मेरा अपना से, जैसे सीतापुर मेरी एक छोटा सा शहर यूपी के लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर। तो by the grace of God, I was honest. I never tried to harass anybody. I tried to treat people with courtesy. And in return, people gave me so much respect, so much love, so much affection that I really felt overwhelmed. In my farewell party given by the Merchants Association, very old businessmen, between the age of 80 and 90, they were shedding tears, and I was really surprised. I asked people, not during that function, but after that function, कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया आपके साथ में कि जो आप लोग इतना ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतना रिगार्ड देते हैं। तो मुझे कई बिजनेसमैन ने वही सेम जवाब दिया। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि मैं समझता था कि ये सब कुछ मेरी ऑनेस्टी की वजह से, कि मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं बेईमान नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, ऑनेस्टी तो अच्छी चीज है, वो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मेन रीजन आपकी कर्टसी थी। मेन रीजन ये था कि आप हमेशा लोगों को जो रिस्पेक्ट सोसाइटी में आमतौर पर दी जाती है वो देते थे, बड़ों को अदब से पेश आते थे, अपने बड़ा को जिस तरह से सोसाइटी में एक बुजुर्ग के साथ ट्रीटमेंट किया था, अगर कोई बुजुर्ग बिजनेसमैन आता था तो वैसे ही कर्टसी आप पेश करते थे। मैं कई बार अपने कमरे से बाहर चला जाता था उनको वेलकम करके बुलाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ जो लीगल रिश्ता है वो बहुत नरम हो जाता है, नहीं, लीगली मैं वही करूंगा जो मुझे करना था। मैं बराबर बाहर निकल के देखता रहता था कि कौन कितनी देर से बैठा होगा। देर से बैठा हुआ है तो और मजबूरी है बैठना है, तो मैं पीएन को बुला के पूछता था कि भाई इनको पानी ला के दो, उनको चाय के लिए पूछो, उनको इसके लिए पूछो, जो भी मुमकिन है, जो कि आमतौर पर सोसाइटी में हम लोग करते हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं। ना वहाँ कोई कैंटीन थी, ना कोई और फैसिलिटीज थी, लेकिन जो मेरा घर ऑफिस का रेजिडेंस था, छोटा मोटा मामूली माइनर कर्टसी में ऑब्जर्व कर सकता था, वो कर सकता था। बहुत ही छोटी चीज। लोगों ने कहा कि मेन चीज वो थी। उसी जमाने में मैंने ये भी देखा कि वन ऑफ माई प्रेडेसेसर, जो मेरी जगह पर जो आदमी था, जो वो आया करता था और उसकी बड़ी इज्जत होती थी, लोग बड़े दूर दूर से मिलने आया करते थे और बड़ा जिक्र होता था उस जमाने में शहर में कि साहब वो आए हुए हैं सक्सेना साहब। तो एक बार सक्सेना साहब कैसे ही मैं लोगों से पूछा कि भाई क्या बात है, क्या सक्सेना साहब बहुत ईमानदार आदमी थे? नहीं, वो भी पैसे लेते थे, मगर लोगों को हरेस नहीं करते, तंग नहीं करते। देखिए, एक बात जान लीजिए, जो टैक्स पेयर है वो आम क्रिमिनल की तरह नहीं है, वो एक सोशल बीइंग है। आपकी फैमिली, मेरे फैमिली के जैसे लोग वहां जाके बैठते हैं, तो उनके लिए कर्टसी बहुत मायने रखती है। ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी डेफिनेटली मैटर करती है, मगर ऑनेस्टी के साथ में अगर कर्टसी भी हो तो जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा। दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस, डायरेक्ट फेस टू फेस एक्सपीरियंस, नॉट ओनली इन वन प्लेस सीतापुर बट so many places. You will one day become officer, and I tell you that please remain courteous with the people. That will earn much higher dividends as a social being to you than your honesty. You must be honest. That is absolutely basic. But honesty is not the only factor which matters. To at least to the taxpayer. A lot of other people also. Middle class care a lot for courtesy. However nice he or she is not courteous, that creates a very bad impact. So that is probably the idea. Probably, I'm not sure about the idea of the government, that to give a courteous treatment to honest taxpayers, even to everybody, all the taxpayers. Is it clear? Hello. Yes, sir. अच्छा, ये प्लेटफॉर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है, कोई बताएगा मुझे? अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैं बीच में हूँ। What is the main objective of this
transparent taxation platform. Hello. Sir, to ensure more accountability and transparency. And courtesy. And courtesy. जिसके बारे में मैं 10 मिनट से बोल रहा था. Courtesy, more courteous behavior. And what is the idea of taxpayers charter? Sir, to give right and duties to the taxpayer. To define the rights and duties of the taxpayer. Yes, sir. A taxpayer friendly regime could be established. That's right. Okay, Yes. let me carry on. Let me move on. Okay. With reduced hardships for the taxpayer, the faceless e-assessment system would foster voluntary tax compliance. ये गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये माहौल अच्छा हो जाएगा तो उस अच्छे माहौल में लोग वॉलंटरी टैक्सपेयर जो टैक्स असेसमेंट है वो टैक्स का पेमेंट है बढ़ जाएगा. मैं इसके लिए बहुत श्योर नहीं हूँ, मगर जो गवर्नमेंट ने कहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको. The use of technology to that end will help build trust within industry and among wealth creators. ये कैसे हो कह रहे हैं कि जो हम टेक्नोलॉजी का खासतौर से आईटी का जो इस्तेमाल टैक्स असेसमेंट में कर रहे हैं, फेसलेस असेसमेंट में, वो गवर्नमेंट लोगों के बीच में जो ट्रस्ट है उसको लोगों यानी टैक्स पेयर्स एंड गवर्नमेंट के बीच में, टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में जो ट्रस्ट है उसको बढ़ाएगा. ये जरूर है, हैरेसमेंट कम हो जाएगा. जब फेस टू फेस बैठा होता है तो उसमें हैरेसमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं. हरेसमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं. चलिए आगे कुछ और मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा. In the last few years, tax scrutiny cases have reduced by almost 1/4 from 0.94% earlier to now 0.26. देखिए मैं 0.29 बता रहा था, ये 0.26 ही है. यानी टोटल जितने रिटर्न जमा होते हैं उसका सिर्फ 0.26% केसेस जो है स्क्रूटनी की जाती है. अब वो भी अब जो है फेसलेस स्क्रूटनी हुआ करेगी. फेसलेस स्क्रूटनी का मतलब है कि जिसमें कि टैक्स पेयर को नहीं पता होगा कि कौन टैक्स ऑफिसर उसकी स्क्रूटनी कर रहा है, केस स्क्रूटनाइज कर रहा है, और जो स्क्रूटनी कर रहा है उसको भी नहीं पता चलेगा कि किसका केस, किस इंडिविजुअल या किस कंपनी का केस वो स्क्रूटनाइज कर रहा है. ठीक, उसमें जब ये नहीं मालूम पड़ेगा तो नेचुरली हैरेसमेंट का और परेशान करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. अभी ये हुआ नहीं है, ऐसा होना है. मैं जब डिपार्टमेंट में था तब ये प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि ये किस हद तक कामयाब होगा. चलिए और आगे चलते हैं. ये गवर्नमेंट कई सालों से रिफॉर्म करती चली आ रही है. मैंने बताया आपको कि आज से 50 साल पहले लगभग सारे रिटर्न जमा होते थे, वो हर रिटर्न जो है उसको स्क्रूटनी होती थी, और अब हम वहां पर पहुंच गए कि ओनली 0.26 यानी ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ ए परसेंटेज 1% के करीब जो है अब केसेस स्क्रूटनाइज हो रहा है. ठीक है, अगर 1 करोड़ रिटर्न जमा होते हैं तो 1 करोड़ का क्वार्टर का 1% कितना हुआ? 1 लाख, 1 लाख, और 1 लाख का आधा कितना हुआ? 50,000, और क्वार्टर कितना हुआ? मतलब 0.26 का मतलब हुआ कि अगर 1 करोड़ रिटर्न जमा हुए ओनली 26,000 केसेस आर स्क्रूटिनाइज्ड. आपको कुछ पता है कि पिछले कुछ सालों में रिटर्न्स की गिनती कितनी बढ़ी है? बिटवीन पिछले 6-7 सालों में जो रिटर्न फाइल होते हैं इनकम टैक्स के, उनकी करोड़. ये जानकर आपको दुख होगा कि जबकि 2.5 करोड़ रिटर्न्स की गिनती बढ़ी है और कुल रिटर्न्स जो जमा होते हैं वो 6 करोड़ से ऊपर हैं. कितने लोग टैक्स देते हैं इंडिया में? कोई बताएगा मुझे? कितने टैक्स पेयर्स हैं इंडिया में? 1.5 करोड़. बिल्कुल ठीक, लगता है आपने आर्टिकल देखा है. गुड, आर्टिकल था तब भी बहुत अच्छी बात, पढ़ा तो कम से कम. आउट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 138 करोड़. नहीं, वही 130 तो पुरानी फिगर लिखी, आर्टिकल से आप पढ़ लें, असली तो 138 करोड़ के करीब है. चलिए, अगर ये रिफॉर्म सारे के सारे कामयाबी के साथ इंडिया में हो गए, प्लेस इंडिया अमंग दी फ्रंट रनर्स, तो
ये सारे रिफॉर्म्स के बाद भी अगर हमारे यहाँ रिटर्न टैक्स देने वालों की गिनती जो है वो इतनी कम है, तो ये तो बहुत दुख की बात है। इसका मतलब ये कि अभी भी टैक्स का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और टैक्स हमको मिल रहा है बहुत कम। इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो वी कैन से दैट आवर टैक्स बेस इज वेरी वेरी नैरो। अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच में एक और बात कही, उन्होंने ये कहा कि टैक्स सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। टैक्सेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, अगर उनको सिंप्लीफाई किया जाए तो उम्मीद है कि लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स जमा कर देंगे। ये टैक्स सिंप्लीफिकेशन की बात पहली बार नहीं कही गई है, ये बात कम से कम 3-4 डिकेड से मैं सुन रहा हूँ और बहुत बार डिस्कशन है और बहुत कई कमीशन अपॉइंट हुए हैं और कितने कितने साल तो इनकम टैक्स को उन्होंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, नए कोड डेवलप किए, मगर बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं हुई है। डायरेक्ट टैक्स की डिस्प्यूट भी कम हुई हैं, करीब बताएं कि 4 लाख to state direct tax dispute at the end of 2013 was 4.10 लाख करोड़ रुपया डिस्प्यूट में था, वो बढ़कर 8 लाख करोड़ हो गया है 18-19 में। 13-14 से 5 साल के बाद 18-19 में जो डिस्प्यूट में था, जो जिस पर मुकदमे चल रहे थे टैक्स वाले केसेस, उसका अमाउंट 4 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ के करीब हो गया है। तो कुल मिला के जो भी सिंप्लीफिकेशन हुआ है उसका कुछ खास असर दिखाई नहीं पड़ा। तो अभी भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स कॉम्प्लिकेशन का ये है कि कुछ खास तरह की इंडस्ट्रीज को, कुछ खास तरह के एसएससीज को, कुछ खास तरह के सेक्टर्स को एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं कि अगर आपकी कल्चर इनकम है तो आपकी इनकम से छूट है, अगर आपकी एक्सपोर्ट इनकम है तो उसको ये छूट है, अगर आप बैकवर्ड एरिया में हैं तो इतने साल तक छूट है। तो इन तरह की छूट हैं, उससे कॉम्प्लिकेशन आता है क्योंकि उन छूटों को डिफाइन करने के लिए डिस्प्यूट होती है कि हम उस एरिया में हैं कि हैं नहीं, उस सेक्टर में हैं कि नहीं, उस पर मुकदमेबाजी होती है और डिस्प्यूट की गिनती बढ़ती चली जाती है और पैसा जो है गवर्नमेंट का डिस्प्यूट में फंस जाता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता नहीं है। तो जरूरत यह है कि बहुत दिनों से कोशिश ये भी माना गया कि जो एग्जम्पशंस जो हैं उनको मिनिमाइज किया जाए और हो सका जाए सारे एग्जम्पशन खत्म किए जाएं। उस डायरेक्शन में भी कुछ कदम उठाए गए हैं, मगर अभी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। ये सिचुएशन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओवरऑल डायरेक्शन जो टैक्स रिफॉर्म्स की है वो आज से 50 साल से अगर आप देखें तो डायरेक्शन ये है कि दैट गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू मिनिमाइज द परसेंटेज ऑफ scrutiny assessment, right? So much so that at present the percentage of cases, income tax cases that are picked up for scrutiny assessment are reduced to only 0.26%. This is a very low, minuscule percentage, right? और साथ ही साथ अगर उसके बावजूद भी जो हरेसमेंट, टैक्स हरेसमेंट के जो केसेस हैं और कंप्लेंट्स हैं वो कम नहीं हो रही। इसलिए गवर्नमेंट ने ये लेटेस्ट प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया है जिसके जरिए कि वो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स की लाइफ को बेटर करेंगे, उनको कर्टियस ट्रीटमेंट देंगे, ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं। और सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या है कि आईटीसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए फेसलेस स्क्रूटनी असेसमेंट्स होंगे। जो भी स्क्रूटनी असेसमेंट्स होंगे उसमें टैक्स पेयर को नहीं पता होगा कि हमारा टैक्स ऑफिसर कौन है, और टैक्स ऑफिसर जो असेसमेंट कर रहा है स्क्रूटनी असेसमेंट, उसको नहीं पता होगा कि हम किसका असेसमेंट कर रहे हैं। और इस पर आधारित है उनका ये होप कि जिसकी वजह से हरेसमेंट कम हो जाएगा। ये तो गवर्नमेंट की सोच है और शायद इसमें काफी सच्चाई भी है। बट माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस suggests that there are times when face-to-face interaction is helpful. Of course, face-to-face interaction has both the potentials. It can help the government and it can harass the SSC. It can lead to corruption also. But if the tax officer is honest, it can tremendously help the tax department. And my own, without going into too many stories, although I have a number of stories, someday if you have time, I can narrate stories of income tax raids. I have carried out dozens of income tax raids in Banaras, Gorakhpur, Allahabad, other districts of UP, Maunad, Bhanjan, and
and I have dealt with cases, very difficult, complex cases. Once I set a record of launching as many as 500 criminal prosecutions against tax evaders in 1 year. That was the record. Let me come to the main theme. So my own experience is, if the tax officer is honest, ये बनारस की बात है, और उनमें से जो साड़ी वाले हैं वो अपनी नई फर्म बना रहे हैं। तो नई फर्म बनाने के लिए होता क्या है, एक आदमी साड़ी का बिजनेस अच्छा कर लिया, फिर वो इंडिविजुअल बिजनेस को, इंडिविजुअल में टैक्स ज्यादा था टैक्स रेट, तो उसको पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो नई एक पार्टनरशिप फर्म बनाते थे, तो नई पार्टनरशिप में उनको कई पार्टनर दिखाने होते थे। पार्टनर भी यूजुअली वो भाई भतीजे को ही चुन लिया करते थे और दिखाते मिलकर फर्म बनाई है। एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए लगाए, दूसरे ने 3 लाख लगाए, दूसरे ने 2.5 लाख लगाए, किसी ने 5 लाख लगाए। ठीक, अक्सर होता क्या था कि वो पैसा होता था उस एक नहीं था, और उन लोगों के नाम से फर्जी दिखा देते थे कि भाई इनका पैसा है। तो ऐसा ही एक केस छोटा सा मेरे सामने आया। उसमें एक यंग रिलेटिव था, उस मेन एसएससी का, जिसने दिखाया कि साहब सपोज करिए कि उसने दिखाया हमने 1.5 लाख रुपया फर्म में कंट्रीब्यूट किया। ये एक इनकम टैक्स ऑफिस का सीन समझ लीजिए। मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हूं, सामने वो यंग लड़का कुछ 22-24 साल का रहा होगा, वो एक पार्टनर था जिसने कि कागज पे ये दिखाया था कि 1.5 लाख रुपया उसने लगाया इस फर्म में। तो मैंने उसको मतलब बुलाया था, इसलिए वो आया था। उसके साथ में उसका वकील भी आया था, और साथ में हमारा स्टेनोग्राफर बैठा हुआ था स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैंने धीरे धीरे उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया उस लड़के का। तो उससे मैंने पूछा कि भाई आपका क्या नाम है? उसने बताया मेरा ये नाम है। मैंने कहा कि इस फर्म के बारे में आप जानते हैं? तो नाम बताया, उन्होंने कहा जी मैं जानता हूँ। मैंने कहा इस फर्म से आपका क्या रिश्ता है? उसमें पार्टनर हूँ। आपका शेयर है? उसने बताया कि मेरा इतना % शेयर है। आपने उसमें पैसा लगाया है? मैंने कहा जी मैंने पैसा लगाया। ये सारी बात रिकॉर्ड हो रही है। उसने कहा कि मैंने 1.5 लाख रुपया लगाया। अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट सवाल की तरफ बढ़ा। मैंने कहा भाई ये 1.5 लाख रुपया आपको कहाँ से मिला? तो उसने कहा कि मैंने ये उधार लिया। तो मैंने कहा आपने किससे उधार लिया? उसने उस आदमी का नाम बताया, और नाम वही था जो कि पिछली हियरिंग पर मुझे बताया था उनके वकील ने कि भाई इसने ये पैसा उधार लिया है फलां से। उसका नाम बताया। मैंने कहा जिससे उधार लिया उसका पता? उसने पता भी ठीक ठीक बता दिया। मेरा आखिरी सवाल उससे ये था कि जिससे उधार लिया है उसको मैंने बाहर बैठा के रखा हुआ है, और 4 और आदमी भी बैठा रखे हैं, उनके बीच में मैं उसको बुलाता हूँ, उसको पहचान लोगे? वो रोने लगा, कहने लगा नहीं साहब मैं नहीं पहचान पाऊंगा। मैंने कहा फिर उसने कबूल दिया सारी बात कि ये पैसा तो साहब ये वक्त में बताया था मैंने आपको बोल। तो आर यू लिसनिंग? आई एम नॉट हियरिंग एनी वॉइस। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. वेरी गुड। तो ये देखो फेस टू फेस असेसमेंट का कमाल है। सच बात ये है कि मैंने किसी को बाहर उठा के नहीं रखा हुआ था। उसको मैंने बोला कि जिससे तुमने उधार लिया, तो मैंने उसको अलग कमरे में बैठाया हुआ है और 4 आदमी और बैठे हुए हैं वहां पर, जहाँ उनमें जाके पहचान सकते हो किससे तुमने कर्जा लिया। उन्होंने कहा नहीं सर मैं नहीं पहचान पाऊंगा। ये रिकॉर्ड हो गया। फिर उसने ये भी रिकॉर्ड हो गई बात की। मैंने कहा भाई ठीक था, उनका साहब वकील साहब ने कहा बोला, ये सब रिकॉर्ड हो गया। अब ये फेसलेस असेसमेंट में ये चीज पॉसिबल है। आपको सुन के साथ खुशी होगी कि मैंने ओवर द इयर्स ये नैक डेवलप कर लिया था कि इंटरोगेशन के जरिए बहुत सारे फेल्ड केसेस में मैंने कामयाब किया। ऐसा कई बार होता था कि जैसे कोई रेड हुआ कहीं पर नहीं किया, और मैं कोई और ऑफिसर थे जो कर रहे, और उसमें उनको कुछ भी नहीं मिला। ना मिलने का मतलब अनअकाउंटेड कैश, अनअकाउंटेड ज्वेलरी, या कोई ट्रांजैक्शन का सबूत जो अनअकाउंटेड फॉर थे जिसको नहीं डिस्क्लोज किया था, तो उसको मिला कर टैक्स रेट हो गया। तो ऐसे कई मौकों पे ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर मुझे लास्ट मोमेंट पे बुला लिया, कहा यहाँ भाई जो जिनके यहाँ रेड हुआ है
ये सिचुएशन बताई का असेस, आप उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दीजिए। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तो ऐसे अब इतना टाइम नहीं कि मैं आपको और स्टोरीज सुनाऊं, आगे कभी वक्त होगा तो वो स्टोरीज मैं सुनाऊंगा कि कैसी स्टेटमेंट के अंदर मैंने सब कुछ धीरे धीरे को बुलवा, उसने इतने मेजर डिस्क्लोजर्स कर दिए कि कभी होता था उसको प्यार से ट्रीट करने में, कभी थोड़ा सा गुस्सा दिला दिया, किसी को प्राइड उसका जगा दिया, उस प्राइड में उसने बहुत कुछ बोल दिया। तो ऐसे कई हमारे नाकाम इनकम टैक्स रेट कामयाब हो गए सिर्फ स्टेटमेंट करने। तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो फेस टू फेस होता है, वो स्क्रूटनी असेसमेंट का ही पार्ट हुआ करता था या इनकम टैक्स रेट का पार्ट हुआ करता था। तो मेरा कहना यह है कि अगर टैक्स ऑफिसर ऑनेस्ट हो तो फेस टू फेस असेसमेंट को खत्म करने की जरूरत नहीं है, और इस अपॉर्चुनिटी को एलिमिनेट कम करना चाहिए मगर जीरो नहीं करना चाहिए। ये मेरा व्यू है, मैं एक्सपर्ट का व्यू अभी इसके बारे में मैंने पढ़ा। एनी कमेंट्स फ्रॉम यू? एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर? हेलो, Yes, sir. please say Everything is clear. very clear. Did you like the story? Yes, sir. It was very interesting. So what have you learned from the story? सर आई लर्न दैट कि अगर courteous बिहेवियर हो, मतलब जो फेस टू फेस इंटरफेस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेस हाँ, टू जीरो फेस। नहीं करना चाहिए। जी जी सर। हाँ, फेस टू फेस इंटरेक्शन से कई बार ऐसी डिस्क्लोजर्स हो जाते हैं जो कि फेसलेस इंटरेक्शन से नहीं हो सकते। कागज नहीं बोलता, कागज तो ये बोल रहा था कि इस आदमी ने कर्जा लिया है इस आदमी से, लेकिन अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते, उसको अपने ऑफिस में नहीं बुलाते, उसका स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करते, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। चलिए फिर कभी कोई मौका होगा तो मैं आपको स्टोरीज सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग केसेस, सर्वेज के, इनकम टैक्स रेट्स के, रेट चला करते थे, हो गया कि मैं बच गया मगर टैक्टफुली सिचुएशन संभाल ली। तो आप समझ गए टैक्स पूरी बात कही है कि आपको डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स का डायरेक्शन पता चल गया। अब डायरेक्शन ये है फेसलेस का। तो मेरा व्यू ये है कि फेसलेस को कम करें, क्योंकि फेसलेस जो स्क्रूटनी असेसमेंट है वो कंप्रोमाइज इसलिए है कि हमको अपने ऑफिसर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट इसलिए नहीं है कि अगर फेस टू फेस मिलेंगे तो उनसे वो डिमांड करना शुरू करेंगे, गलतियां पकड़ेंगे उसको उनको इन कैश कर लेंगे। अगर अपने कार्डर्स को हम को ऑनेस्ट बना सकें, उनके अंदर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी ला सकें, तो फिर फेसलेस करने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, मैं डिपार्टमेंट में रहा हूँ और उन 10 साल में मैंने सीखा है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन से डिपार्टमेंट का फायदा होता है, लेकिन नियत पर डिपेंड करता है। अगर टैक्स ऑफिसर की नियत गड़बड़ है तो डिपार्टमेंट को नुकसान है। थैंक यू वेरी मच।